Assalamu alaikum, dear children of class 4, and a very good morning to you all. I hope you all are good and safe, and I also hope that you are doing your work well at home. Welcome back after the weekend, and today is Monday 26th April 2021 and your homework day for science. So I hope you all are ready for your today's work. So children, today we are going to start our unit number 13, that is the movement of the earth, page number 119, right? So open your books of science, page number 119. Our unit is unit 13, the movement of the earth. We are going to start with its reading and explanation. All right, so open page number 119. There is a column with orange color on the top. Here it's written recall. मैंने आपको पहले भी बताया था कि recall हमारा previous knowledge होता है. Again I'm telling you कि recall हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें हमारा जो previous knowledge है, पहले का knowledge इस चीज़ के बारे में वो थोड़ा recall हो जाए, याद आ जाए, ताकि हम अगला जो पढ़ेंगे वो easily पढ़ सकें, right? So in recall, point number 1 is, as this unit is about the earth, ये earth के बारे में movement of earth के बारे में है, तो ये जो हमारा recall, हमारा जो previous knowledge होगा वो भी इसी के बारे में होगा. तो हम पढ़ते हैं. point number 1 क्या है? Earth is one of the 8 planets which makes up the solar system. ये तो सबको पता है कि जो earth है वो 8 planets में से एक है. Day and nights are caused by rotation of the earth on its axis. Day and night कैसे cause होती है? rotation of the earth से. The moon is a satellite of the earth. It has different phases. ये भी सबको पता है कि satellite है, moon जो है वो satellite और different phases हैं. Man-made satellites give us information about space and atmosphere. Man-made जो satellites होते हैं वो space और atmosphere के बारे में हमें information देते हैं. Next is you will learn that. It means that you are going to study in this unit कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. Point number 1 is the earth spins on its axis. Earth जो है वो spin करती है अपने axis के इर्द गिर्द. This movement is known as rotation. इस movement को rotation कहते हैं. The earth orbits the sun. और फिर उसके अलावा earth क्या करती है? orbit करती है sun के इर्द गिर्द. This movement is called revolution. इसको revolution कहते हैं. The equator divides the earth into 2 hemispheres. Equator जो है वो earth को 2 halves में divide करता है, ठीक है. Seasons are caused by Earth's tilted axis and its revolution around the sun. और इसके अलावा जो सीज़न कैसे होते हैं, जो अर्थ जो टिल्ट हो जाती है, उसकी एक्सिस जो टिल्ट हो जाते हैं और उसकी जो रेवोल्यूशन होती है अराउंड द सन, इस तरह कॉज होती है, राइट. Okay, moving forward to your unit. When you move in a car or train, sometimes it seems that the houses, trees and shops on the sides of the road are moving backward. As you move forward, do they really move? No, it is your car which is moving. Okay, जब आप कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसे लग रहा होता है कि आपके साइड पे जो ट्रीज़, हाउसेस, कार्स या और भी जितनी चीज़ें हैं वो आपके साथ जो है वो मूव कर रही हैं, ठीक है. वो ऐसे लगता है कि आप जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और वो पीछे की तरफ मूव कर रही हैं चीज़ें. तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता. ये जो आपकी कार है जो मूव कर रही होती है, राइट. सो another example of this movement is a merry-go-round ride. When you ride on a merry-go-round, you keep moving in circles, but you feel as if other people who are standing on the ground are also moving with you. However, you know that they are not moving. इसी तरह एक राइड होती है मेरी गो राउंड राइड जो होती है, उसमें आप जब राइड ले रहे हो तो आपको लगता है ग्राउंड पे जो लोग खड़े हैं वो भी आपके साथ मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो आप मूव कर रहे होते हैं, ठीक है. इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है. सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. हमारा जो ये तो सबको पता है ना, सूरज मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है. तो हमारा तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि सूरज मशरिक़ से चलता हुआ मगरिब की तरफ चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता. ये बेसिकली हमारा सूरज वहीं पे रहता है, हमारी अर्थ मूव कर रही होती है, ठीक है. जो एक तरफ से तुलू होता है, दूसरी तरफ से ग़ुरूब होता है, तो वो हमारी अर्थ मूव करती है, सन अपनी जगह पर ही रहता है, राइट. अर्थ हैज़ 2 मूवमेंट्स, ठीक है. 2 मूवमेंट्स हैं, एक को रोटेशन कहते हैं, एक को रेवोल्यूशन कहते हैं. वी आर मूविंग टूवर्ड्स रोटेशन. रोटेशन क्या होती है? द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस जस्ट लाइक अ टॉप. टॉप जो है ना, पता है ना टॉप क्या होता है? देखा हुआ भी होगा, आप लोग खेलते भी होगे, उसको अपनी ज़बान में लट्टू कहते हैं, ठीक है. तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे एज अ टॉप जो है वो स्पिन कर रही होती है, ठीक है. स्पिन ही करता है ना टॉप भी,
इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो होती है जैसे क्लॉक चल रही होती है, क्लॉक चलती है ना 1 2 3 4 इस तरह आती है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन होती है। जैसे अगर क्लॉक को आप देखें वो पीछे की तरफ मूव करना, उसकी जो नीडल्स होती हैं, सुइयाँ जो होती हैं वो पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर दें, मतलब 12 से 11 पे चली जाएँ, फिर 10 पे चली जाएँ, इस तरह। तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह हमारी जो अर्थ है वो स्पिन कर रही होती है अपने एक्सिस पे। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन, इसको रोटेशन कहते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट, और ये जो रोटेशन होती है एक्सिस पे वो डे और नाइट कॉज करता है, ठीक है। एट एनी टाइम ओनली हाफ ऑफ द अर्थ इज़ इन सनलाइट। ये होता है कि जब हमारी एक्सिस पे जो अर्थ जो है वो रोटेट कर रही होती है तो एक ही हाफ जो होता है वो सन की तरफ होता है और दूसरा हाफ जो होता है वो शेडो की तरफ होता है। जो हाफ अर्थ का सन को फेस कर होता है वहाँ पे दिन होता है, और इसी तरह जो हाफ सन से दूसरी साइड पे होता है वहाँ पे नाइट होती है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, दिस पीरियड इज़ कॉल्ड अ डे। तो ये 24 आवर्स में उनकी एक रोटेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद डे जो है वो उसको डे बोलते हैं। तो इस तरह होता है ना कि डे के बाद नाइट आती है, तो इसी तरह जब अर्थ अपनी रोटेट करती रहती है ना, तो वो एक रोटेशन जब उसकी आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हो जाती है तो दिन रात में बदल जाता है, राइट। जो पहले जो साइड पहले धूप की तरफ होती है फिर वो शेडो की तरफ आ जाती है, वहाँ पे रात हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे सूरज ग़रूब होता है, दूसरी तरफ कहीं पे सुबह हो रही होती है, यहाँ पे रात होती है तो दूसरी तरफ सुबह हो रही होती है, यही होता है, ठीक है। बिसाइड द एक्सिस, अच्छा एक्सिस भी एक इमेजनरी लाइन है, ठीक है। ये बेसिकली अर्थ पे होती नहीं है, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सिस एक हमें जो है वो बताई हुई है लाइन के, इस पे अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। उसके अलावा एक और हमारे पास इमेजनरी लाइन होती है जिसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, द नॉर्दर्न हाफ एंड द साउदर्न हाफ, ठीक है। हेमिस्फेयर, मतलब हेमिस्फेयर का मतलब होता है हाफ, ठीक है। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन। एज द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस इट्स ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। जैसे अपने एक्सिस पे वो स्पिन कर रही होती है, इसी तरह अर्थ जो है वो अपने सन के अराउंड भी मूव कर रही होती है। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। इस मूवमेंट को रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन इज़ अ मूवमेंट इन विच द वन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। इसमें ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है। जैसे सोलर सिस्टम आपने देखा हुआ है ना, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उसमें क्या होता है, अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द मूव करेंगे, ठीक है। एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और अर्थ के बाद मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहा है। और ये सारी जितनी भी चीज़ें एक दूसरे के इर्द गिर्द मूव कर रही हैं, ये एक फिक्स्ड पाथ पे मूव कर रही हैं। वो मतलब इनकी एक प्रॉपर पाथ है, इधर से उधर नहीं होती। मतलब जो सन है वो अर्थ की जगह नहीं आ सकता, अर्थ जो है वो सन की जगह नहीं है, कोई भी प्लैनेट एक दूसरे की जगह पे नहीं आ सकता, ठीक है। उस जो फिक्स पाथ होता है उसको ऑर्बिट कहते हैं। द अर्थ कंप्लीट्स वन ऑर्बिट अराउंड द सन इन अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज। तो एक जो ऑर्बिट है, चक्कर अपना जो सन जो है अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द कंप्लीट करती है, वो 365 डेज़ में कंप्लीट करती है। तो वो एक ईयर का 1 ईयर का जो है वो टाइम पीरियड होता है, राइट। वो एक साल में जाके ये पूरी वो है रेवोल्यूशन उसकी कंप्लीट होती है, तो फिर वो साल चेंज होता है। दिन का मैंने आपको बताया ना, ये रोटेशन से चेंज होता है एक्सिस पे, रेवोल्यूशन से जो है वो एक साल चेंज हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज सीजन्स। The earth is slightly tilted on its axis as it orbits the sun, which causes different parts of the earth to receive different amount of heat and light. अच्छा, जब हमारी अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रही होती है, चक्कर काट रही होती है, तो उसकी वो थोड़ा सी टिल्ट हुई होती है। टिल्ट मतलब थोड़ी सी टेढ़ी होती है, ठीक है। तो उससे ये होता है कि अर्थ के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट और लाइट रिसीव कर रहे होते हैं, थोड़ी सी टेढ़ी होने की वजह से। दिस टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस क्रिएट्स सीजन। इससे जो होता है ना वो सीजन बनते हैं, मौसम जो चेंज होते हैं, ठीक है। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, अभी होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, टॉप पे नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है अर्थ पे, ठीक है। तो अगर जो नॉर्थ पोल है वो टिल्ट हुआ हुआ है, मतलब झुका हुआ है सूरज की तरफ, द नॉर्दर्न हाफ और हेमिस्फीयर इज हॉट एंड हैज समर। तो वो जो नॉर्दर्न हाफ पे, नॉर्दर्न पार्ट पे जितने भी एरियाज होंगे वो सब में समर्स होगी, ठीक है। वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, क्योंकि अगर अर्थ टेढ़ी हुई हुई है, टेढ़ी होके उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ है, तो वहाँ पे जितने भी एरियाज होंगे वहाँ पे गर्मी होगी। और जो नीचे वाला पार्ट है लाइक साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो दूर होगा सूरज से, ज़ाहिर है वो अगर ऊपर से वो सूरज की तरफ है तो नीचे से वो टेढ़ा होकर पीछे की तरफ हुआ है, तो वहाँ पे जो साउदर्न हेमिस्फीयर है या साउदर्न हाफ है उसमें जो विंटर होगी, ठीक है। सिमिलरली वाइल इट इज़ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज़ समर इन द साउदर्न। इसी तरह नॉर्दर्न में अगर ठंड होगी तो उधर
अगर दूसरी जगह पे गर्मी होगी तो एक जगह पे अगर गर्मी आएगी तो उस तरह वो टिल्ट होती, रेवोल्यूशन चलती रहती है ना, मतलब वो घूमता रहती है। तो जहाँ पे पहले गर्मी थी तो वो थोड़े अरसे बाद जो है वहाँ पे सर्दी आ जाएगी, मौसम चेंज होते रहते हैं ना, फिर स्प्रिंग आ जाएगी, फिर ऑटम आ जाएगी, इस तरह वो डिफरेंट उनको रिसीव हो रहे होते हैं एरियाज़ वो, ठीक है। दिस डायग्राम बिलो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ सीजन अकर इन द ऑन द अर्थ। इस डायग्राम से आपको जो है ना वो पता चलता जाएगा।